فمن اظلم ممن نفترا علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ، یعنی بڑے کافر دو ہی ہیں، ایک خدا پر افترا کرنے والا، اس پہ حاشیہ لکھا ہوا ہے، ظالم سے مراد اس جگہ کافر ہے۔ اس پر قرینہ یہ ہے کہ مفتری کے مقابل پر مکذب کتاب اللہ کو ظالم ٹھہرایا ہے، اور بلا شبہ وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کرتا ہے کافر ہے۔ سو جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ مجھے مفتری قرار دے کر مجھے کافر ٹھہراتا ہے، اس لیے میری تکفیر کی وجہ سے آپ کافر بنتا ہے۔ آگے ہے دوسرا خدا کی کلام کی تکذیب کرنے والا۔ پس جبکہ میں نے ایک مکذب کے نزدیک خدا پر افترا کیا ہے، مکذب کے نزدیک خدا پر افترا کیا ہے، اس صورت میں نہ میں صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوا، اور اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبہ وہ کفر اس پر پڑے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرمایا ہے۔ علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ آخری زمانہ میں میری امت میں سے ہی مسیح موعود آئے گا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی خبر دی تھی کہ میں معراج کی رات میں مسیح ابن مریم کو ان نبیوں میں دیکھ آیا ہوں جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اور یحییٰ شہید کے پاس دوسرے آسمان میں ان کو دیکھا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں خبر دی کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے، اور خدا نے میری سچائی کی گواہی کے لیے 3 لاکھ سے زیادہ آسمانی نشان ظاہر کیے، اور آسمان پر کسوف و خسوف رمضان میں ہوا۔ اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور عمدن خدا تعالیٰ کے نشانوں کو رد کرتا ہے اور مجھ کو باوجود صدہا نشانوں کے مفتری ٹھہراتا ہے، تو وہ مومن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ مومن ہے تو بوجہ افترا کرنے کے کافر ٹھہرا، کیونکہ میں ان کی نظر میں مفتری ہوں، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم نے طاعت اختیار کر لی ہے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ بس جبکہ خدا اطاعت کرنے والوں کا نام مومن نہیں رکھتا، پھر وہ لوگ خدا کے نزدیک کیوں کر مومن ہو سکتے ہیں جو کھلے طور پر خدا کے کلام کی تکذیب کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے ہزارہا نشان دیکھ کر جو زمین و آسمان میں ظاہر ہوئے پھر بھی میری تکذیب سے باز نہیں آتے۔ وہ خود اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ اگر میں مفتری نہیں اور مومن ہوں تو اس صورت میں وہ میری تکذیب اور تکفیر کے بعد کافر ہوئے اور مجھے کافر ٹھہرا کر اپنے کفر پر مہر لگا دی۔ یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا آخر کافر ہو جاتا ہے، پھر جبکہ قریباً 200 مولویوں نے مجھے کافر ٹھہرایا اور میرے پر کفر کا فتویٰ لکھا گیا، اور انہی کے فتوے سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کو مومن کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، تو اب اس بات کا سہل علاج ہے کہ اگر دوسرے لوگوں میں تخم دیانت اور ایمان ہے اور وہ منافق نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان مولویوں کے بارے میں ایک لمبا اشتہار ہر ایک مولوی کے نام کی تصریح سے شائع کر دیں کہ یہ سب کافر ہیں کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کو کافر بنایا، تب میں ان کو مسلمان سمجھ لوں گا، بشرطیکہ ان میں کوئی نفاق کا شبہ نہ پایا جائے اور خدا کے کھلے معجزات کے مکذب نہ ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافق دوزخ کے نیچے کے طبقے میں ڈالے جائیں گے، اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ آگے عربی میں لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر اعراب نہیں لگے ہوئے تو یہ میں نہیں پڑھ سکوں گا، یعنی کوئی اس کا ترجمہ ہے یعنی کوئی زانی زنا کی حالت میں اور کوئی چور چوری کی حالت میں مومن نہیں ہوتا، پھر منافق نفاق کی حالت میں کیوں کر مومن ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مسئلہ صحیح نہیں کہ کسی کو کافر کہنے سے انسان خود کافر ہو جاتا ہے تو اپنے مولویوں کا فتویٰ مجھے دکھلا دیں، میں قبول کر لوں گا، اور کافر ہو جاتا ہے تو 200 مولویوں کی کفر کی نسبت نام بنام ایک اشتہار شائع کر دیں، بعد اس کے حرام ہوگا کہ میں ان کے اسلام میں شک کروں بشرطیکہ کوئی نفاق کی سیرت ان میں نہ پائی جاوے۔ اب اس میں بڑا واضح ہے کہ جس نے انکار کیا حضرت مسیح موعود کا وہ اس لیے انکار کیا کہ اس نے ان کو مفتری سمجھا، اور اگر وہ مفتری نہیں ہے تو کفر ان پہ لٹے گا کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کو کافر سمجھا ہے۔
تو اس لحاظ سے جو تکفیر کرے گا وہ کافر ہوا، ٹھیک ہے. ہاں جو تحقیق میں ہے اس کی وہ اس فتوے سے باہر ہے، جس کا ذکر ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ اپنے مولویوں کے خلاف کہتا ہے کہ میں ان کی اس تکفیر کے فتوے پہ ان کے ساتھ نہیں ہوں، تو پھر ایسے بندے کو وہ مسلمان ہی سمجھیں گے. تو یہ بڑی بات واضح ہے آپ کے سامنے. آپ اور یہی بتا بات دیں کہ جو مرزا صاحب کے منکر ہیں ان کو مرزا صاحب کو کافر یا کاذب سمجھتے ہیں، ان کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ کافر ہوئے نا اس فتوے کے مطابق، تو ان کو نہیں السلام السلام علیکم علیکم. کہہ سکتے ہیں یا نہیں ان کو؟ ایسے بندے کو نہیں کہنا چاہیے جو تکفیر ٹھیک کرتے ہو ہیں. بس اتنی سی بات ہے جی، ہمیں اتنے 5 منٹ آپ نے زور لگایا یہ ہے. ساری یہ بات ہے، یہ بڑی واضح چلیں جی، طریقے 2 سے ہم ہو نے گیا جی. ہر اینگل سے یہاں پہ سمجھا دی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اس میں ٹوشکر بھائی یہ دوسری جو انہوں نے قرآن کی آیت کوٹ کی ہے وکالت الاعراب ولی، پھر ان کو آگے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے تو ابھی دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا لیکن وہ اسلمنا ہے. تو اسلمنا کا صیغہ تو آتا ہے مسلمان کے لیے اور آگے ایمان والے کا صیغہ آتا ہے مومن کے لیے. جی تو پھر اس عبارہ سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو کر سکتے ہیں سلام، اور جو مسلمان کو ایمان سلام کر سکتے ہیں، لیکن ایسا مسلمان جو کسی دوسرے مسلمان کو کافر ٹھہراتا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے نہیں، یہ ایمان، دوبارہ یہ یہاں سے جہاں سے انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے نا، یہاں سے دوبارہ پڑھے عبارت. یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اب یہ غور کریں کہ اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور عمدن خدا تعالیٰ کے نشانوں کو رد کرتا ہے اور مجھ کو باوجود سدھا نشانوں کی مفتری ٹھہراتا ہے، تو وہ مومن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اگر مومن ہے تو میں بوجہ افترا کرنے کے کافر ٹھہرا ہے، کیونکہ میں ان کی نظر میں ہاں، تو مفتری مومن ہوں. اگلا درجہ چلا گیا نا. مومن ہاں سے وہ پچھلا مفتری، مومن سے لیکن پچھلا درجہ ہے مسلمان کا. اور وہ آیت انہوں نے جو کوٹ کی ہے وہ آیت دوبارہ پڑھے ادھر سے، آپ کو شاید وہ بات دوبارہ نظر آئے جو مجھے نظر آئی ہے. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، لیکن ہاں یہ اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ ان میں ایمان آیا کہ نہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن یہ یوں کہو کہ تم نے اطاعت اختیار کر لی ہے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ہاں، وہ اطاعت جو ہے نا اردو میں لکھا ہوا، وہ اس کی جگہ ورڈ آیا ہے اسلمنا. ہاں جی تو اسلمنا کی جو نسبت آتی ہے وہ مسلمان کے ساتھ آتی ہے، مسلم، مسلمون، جی، مسلمین، اسلمنا، ہمارا کام ہے، اسلام، جی جی، یہ سارا سیم ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی نظر میں کافر ہے، لیکن ہمیں ظاہری طور پہ تو نہیں نا پتا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، تو ہم نے ان کو مسلمان ہی کہنا ہے. لیکن نہیں، جو اللہ نے بندہ، ادھر عراب کو کافر تو نہیں کہا. ہم نے ان کو مسلمان ہی کہنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان ان میں داخل نہیں ہوا. جن میں ہاں، ایمان داخل نہ ہوا ہو، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو وہ، تو جن کو ہم مسلمان کہیں گے ان کو تو سلام کر سکتے ہیں. ہاں ان کو ہم سلام کر سکتے ہیں. لیکن جو آگے پھر بات ہو رہی ہے کہ جو انکار کر دیا جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، اس نے تو ظاہر کر دیا نا، اس نے تو ظاہر کر دیا کہ میں مان نہیں لایا یا میں نے انکار کیا اور ان کو مفتری ٹھہرایا. تو پھر وہ اس کے نیچے، اس فتوے کے نیچے آ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جس نے مسلمان کو کافر کہا اور اس میں وہ کفر نہیں پایا جاتا تو کفر اس پہ لٹے گا، لوٹے گا. السلام علیکم. یار اس عبارت کا اس سے کیا لینا دینا جو فتویٰ وہاں پڑھ کر سنایا گیا مربی صاحب کو، اور جو مربی صاحب نے اس کا جواب دیا وہ تو خالص سلام کرنے کے متعلق ہے کہ سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے جو عبارت پڑھی، یہ تو کفر اور ایمان کے بارے میں ہے. جی تو یہ وہی بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کا فتویٰ ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر سمجھے گا وہ اس پہ کفر لوٹے گا. اور جب آپ حضرت مرزا صاحب کا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو مفتری سمجھا، اور جب آپ نے یہ ظاہر بات کر دی تو ہماری نظر میں پھر آپ کافر ہوئے.
बात तो अच्छा ट्रुथ सीकर साहब मेरा इसी पर एक सवाल अच्छा है। एक मिनट जरा यार एक अल्लाह मिनट है रसूल जो के सवाल फतवे के मुताबिक ये नतीजा हजरत इसका क्या है, मसीह सलाम करना चाहिए कि नहीं करना नहीं चाहिए? है, ये अल्लाह और रसूल का फतवा है। भाई ये सवाल ये नहीं है ट्रुथ सीकर साहब, सवाल ये है सवाल मैंने पाकिस्तान आपको जवाब मैंने आपको जवाब दे दिया है, मैंने आपको पूरी वजाहत से उनका जवाब आपके सामने रखा मैं है। इसीलिए और कह रहा था ये पूरा भारत explain ना किया। पढ़ो, इससे ये भारत तो 20वीं दफा यहाँ पढ़ी है सवाल नंबर 6, इसका तो लेना देना ही कोई नहीं। सवाल ये था सलाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं करना चाहिए। जो मिर्जा साहब को मानते नहीं है उनको सलाम नहीं करना चाहिए, जो उनके मुकफ्फर और पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम मिर्जा साहब के मुकफ्फर और मुकद्दब हैं। कम से कम यहाँ टिकटॉक पर तो कोई भी नहीं ना जो मिर्जा साहब को मानता है, मुसलमानों में ये कोई है? आप जनरली नहीं कह सकते, ये आप नहीं कह सकते, कई लोग हैं अच्छा यहाँ हमें सलाम कर, चलो छोड़ दो बाकियों को, मुझे सलाम करना चाहिए। जिनको आप कहते हैं कि जो कादियानी हो गया, जो लोग अच्छा छोड़ दो, मुझे बताएं, मेरे पर बताएं, मुझे सलाम करना चाहिए, लोग हैं। आमर नजीर को सलाम करना चाहिए, ये सवाल आपने इनकार किया है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का? आपको नहीं पता? आप बता देना भी। यहाँ सारे बंदे कोई नहीं जानता मुझे, कोई इनमें से तो उसको उसका हाथ खड़ा करवा दो। अगर आपने इनकार किया है कि नहीं? हेलो अगर आपको इतना अर्सा हो गया देख रहे हैं इनको, आपको ये इनकार करने वाले लगते हैं या मानने वाले? यार अपने नबी की बात मानने में कितनी परेशानी हो रही है। यार रसूल साहब एक प्रॉब्लम है कि मुझे इंटरप्ट आप करेंगे ना तो मैंने आपको नीचे उतार दिया। सारी दुनिया के मुसलमान मिर्जा साहब का इनकार मैंने करते हैं, आपको मिर्जा कहा साहब को है, काफिर कहते हैं, काजिब डॉक्टर कहते हैं, साहब, बशमूल ज़िया रसूल अहमद नजीर मैंने नहीं उनसे मवाद बात हो रही के। है ना, एक मिनट कौन दसो आप जरा खामोश रहें, बीच में इंटरप्ट ना करें। मैंने आपको क्लियर सारी बात समझा दी है। अगर आमिर नज़ीर साहब इनकार करते हैं और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पे को मुकज़्ज़ब ठहराते हैं तो मेरी नज़र में आमिर नज़ीर काफिर है और मुझे इनको सलाम करना नहीं बनता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इतनी सी तो बात है कि जो मरब्बी साहब ने बात कही है उससे आप इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं? मैंने आपके सामने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पूरी इस बारे में हर एंगल से जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो आपके सामने रख दी है और आपको जवाब भी दे दिया है। अब आप आगे चलें, अब नेक्स्ट जो बात है उस पर आ जाएं हम इर्तिदाद पे। एक फिक्रे में बता दें कि भाई टिकटॉक पर भाई जितने बंदे बैठे मैंने हैं, आपके कहने पे अब रिपीट नहीं करना, मैंने बता दिया है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्या बता दिए? आपको बता दिया है, अब आगे चलना है आपने कि नहीं? भाई हमें तो समझ नहीं आया। वकास साहब आपको समझ आ गया? आपको समझ नहीं आया तो फिर मैं रिपीट नहीं कर आपने सकता। कैटेगोरिकली अमर भाई अपने बारे में भी पूछा, उन्होंने जी बता दिया। जी आमिर साहब उन्होंने दे दिता जवाब कि जो भी अच्छा मिर्जा मेरा एक साहब सवाल है इस पर, जड़ा है वो जो मुकद्दब समझदा बात है इन्होंने पढ़ी वो है। नहीं करना। यानी जो बंदा मिर्जा साहब को नहीं मानता उसको सलाम नहीं करना, ऐसा ही है? हाँ ऐसे जी ही है। जी जी यही स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, बिल्कुल। वकास ठीक हो साहब, गया। हैप्पी साहब, इनको करना है कि नहीं करना? इनको करना है। कानून नमस्ते कर लो, शलोम कर लो, जय श्री राम कर लो, हर ਉਹਨਾਂ हर ਨੂੰ राधे कर ਤੁਸੀਂ- लो। ਤੁਸੀਂ जो मर्जी करे ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ लो। यार हम तो ना पूछने वाले हैं। इनको सलाम इसलिए करना है कि ये अगर कुरान मजीद पे गौर करके एक बात समझ रहे हैं उस हाँ, हम तो लिहाज से- तहकीक में है जी, बाकी बात इनकी ठीक है, हम तो तहकीक में है, हमारी कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं है किसी लिहाज मिर्जा से भी साहब को फाइनल मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, मेरी नहीं, कोई लेकिन फाइनल स्टेटमेंट तहकीक वाले ना, तहकीक वाले इसमें नहीं आते ना इस फतवे में। मेरी कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं है ना हमेशा। मैं कैसे आपको बोल दूंगा मैं नहीं मानता या मैं मानता हूँ? ਅੱਲਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्ਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਰ ਨੇ। तो देखो खलीफे ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਹਿਕੀਕ ਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ही जिन्होंने नहीं सुनिया वो भी काफिर ने। मेरी एक बात सुने ज़िया साहब, अब आप इजाफी बातें ना करें, ठीक है? जो सवाल आपने किया था हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हिसाब से, अच्छा मेरा इसी तहरीर पर जो आपने पढ़ी है इस पर सवाल है, जो आपने इतनी लंबी तहरीर पढ़ी है इसी पर सवाल है, इससे बाहर मैं नहीं जाता। कोई जवाब देगा? क्या सवाल है आपका, बताएं। सवाल मेरा यह है कि मिर्जा साहब के इल्हाम का इनकार करने वाला बंदा वो तो हो गया काफर, ठीक है, और जो बंदा अब्दुल्ला गजनी के इल्हाम का इनकार करता है वो मुसलमान है या काफर है? पता नहीं यार क्या सवाल है। एक इल्हाम हुआ मिर्जा साहब को, एक इल्हाम हुआ अब्दुल्ला गजनी को। अब्दुल्ला गजनी साहब भी 26 साल जिंदा रहे हैं, इल्हाम के बाद मिर्जा साहब भी जिंदा रहे हैं।
23 साल के फार्मूले पर दोनों के इल्हाम सच्चे हैं, ठीक है। अब जो अब्दुल्ला गजनी का इल्हाम का इनकार करता है वो बंदा काफिर है या मुसलमान है? सवाल मेरा ये है। हाँ जी, अभी ये जो टॉपिक चल रहा है ना उसका मैंने जवाब दे दिया है। अब ये अब्दुल हक गजनी का वो है कि वो अल्लाह के नबी रसूल थे सच्चे? नहीं, ये तो सवाल इल्हाम पर है। मेरा सवाल इल्हाम पर है। अच्छा, इल्हाम तकफीर तो इल्हाम की होती है ना, इनकार तो इल्हाम का होता है ना, दावे का इनकार नहीं होता, इनकार इल्हाम का होता है। ओ भाई देखें, सबसे पहले ये है कि जो नबी और रसूल होता है वो दावा करते हैं, ठीक है, उसको आप मानेंगे तो इसका मतलब है कि आप देखें सिर्फ नबी और रसूल पे मान लाना फर्ज है कुरान के मुताबिक, ठीक है। तो इसलिए हमेशा नबी और रसूल ही दावा करता है कि मुझे अल्लाह ने नबी और रसूल बनाया है, और जो उसका अगर इनकार करेगा और अगर वो नबी सच्चा है तो वो कुफर उस बंदे पे यार सियाद साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ म्यूजिक देना अच्छा नहीं, तो जवाब मुकम्मल करने दे वक्त शॉर्ट है यार। एक मिनट छोटा सा मेरा सवाल है यार, छोटा सा सवाल है, छोटी सी बात है, इस सवाल मैं दूध अल्फाज में किया करें। इसका इस टॉपिक से ताल्लुक नहीं है भाई सिद्धा नहीं, दस देण नबूवत ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਐਡਾ ਲੰਮਾ आ भी परेशान हो रहे हैं मुद्दई नबूवत के बारे में अगर है तो ऐसे बात करनी है तो मैंने आपको उतार देना है। नहीं, उनका अपना एक नहीं अच्छा टॉपिक का मेरी तरफ तवज्जो करें ना, आपने सवाल को। बात यह है कि पीर इस्काली साहब जो हैं वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह बात करते हैं सब कुछ, लेकिन उनकी भी ब्रॉड पे ये मसला होता है कि अगर मैं जाऊं तो वो मैनेज नहीं कर पाते सही तरह। अच्छा आप इसका बताएं ना, मुझे जवाब देना। मैं दूध साहब यार सीकर साहब, ये जितनी आप ज्यादा बोलेंगे उतना लोग तंग पड़ के आपसे मुखातब होते हैं। इमाम साहब मैंने आपको बता दिया है कि ये टॉपिक से रिलेटेड सवाल नहीं है। अभी जिस टॉपिक बात हो रही है उसका जवाब मैंने दे दिया है। अब आगे जो दूसरा टॉपिक इर्तिदाद का था उस पर आना है। मसला तो टोशिकर भाई हुण बन गया है कि आमर नज़ीर साहब के मुताबिक टोशिकर काफिर, टोशिकर के मुताबिक आमर नज़ीर काफिर थे। दोनों जो मुसलमान कौन है सच्चा? बनी इसराइल भाई बात सुने ना, सवाल टॉपिक और रिलेटेड नजदीक हो जाते हैं। मिर्जा साहब पर नाजिर होने वाली वही को उन्होंने कभी वही नबूवत करार दिया, उसका हवाला मुझे दरकार है। हेलो अपने ऊपर नाजिल होने वाली वही को वही नबूवत करार दिया हो, इसका हवाला दरकार है। यार ये वलायत असली दिखा देंगे। मारी जा रहे हो, बात जो हो रही है इस टॉपिक से, इस टॉपिक पे मैंने बात सामने कर दी है। अब एक दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना यहाँ पे। सिकर साहब मिर्जा साहब की वही विलायत थी, हम साबित कर देते हैं। आप दिखा दें मिर्जा साहब ने उसको वही नबूवत कहा हो। जब वही नबूवत ही नहीं है तो नबूवत कहाँ से हो गई? फिर तो वही वलायत बचती है पीछे। वही वलायत जैसी अब्दुल्ला गजनी को थी वैसी मिर्जा साहब की, जैसे मिर्जा साहब की वही का मुनकर काफर है वैसे उनकी वही का मुनकर काफर है। मिर्जा साहब ने अपनी सारी जिंदगी में अपनी वही को कहीं वही नबूवत करार नहीं दिया। नहीं मवान साहब, क्या अब्दुल हक गजनवी जो थे उनकी वही के अल्फाज वही हैं जो मिर्जा साहब की वहियों में थे? उनके इल्हाम के बकायदा अल्फाज खुद मिर्जा साहब ने नकल किए 1891 में। वो उनके इल्हाम के अल्फाज वही हैं जो मिर्जा साहब के इल्हामों के हैं? वैसे ही अल्फाज है जैसे मिर्जा साहब के इल्हामों के हैं, बिल्कुल हूबहू वैसे ही हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने नकल किए हैं कि उन्होंने नहीं जैसे इल्हाम मिर्जा साहब को होते थे बिल्कुल वैसे उन्हीं लफ्जों के साथ अब्दुल्ला गजनवी को इल्हाम हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता कि मिर्जा साहब के सारे देखा ना मौलवी साहब भाग गए हैं। बात असल में नाजरीन इकराम ये है, उनको तो वही और अल्फाज में हुई है, मिर्जा साहब को और अल्फाज में हुई है, तो कैसे वो उनकी वही के बारे में ये शर्त रख सकते हैं मिर्जा साहब के? बनी इसराइल साहब आप ये सवाल ज़हन में रखें और उनसे मुतालबा रखें कि मिर्जा साहब को वही नबूवत अपनी ऊपर नाज़िल होने वही नबूवत कब करार पाई है? क्या मुतालबा रखूं? अब सुने ना, मैं आपको एक मुनसब बना रहा हूँ यहाँ पर। देखिए मेरा एतराज ही नहीं है ना, नहीं नवाब साहब बात तो सुन लें, बात तो सुन लें। मैं मिर्जा साहब पे बात तब करूं कि मैं वो जिनकी अताअत में जो है, मिर्जा साहब की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो सूल पर बात कर रहा हूँ कि जिस बंदे कोई वही नबूवत हो ही ना वो नबी होता है। नहीं वही है नबूवत, देखें वही कोई दलील नहीं है नबी होने की, ये कुरान में कहीं पे भी नहीं है। वही तो हजरत मूसा की वालदा को भी हुई है, तो क्या वो नबी बनते? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात वही शहद की मक्खी पे हुई है, तो क्या वो शहद सारी बातें मेरे इल्म में, ये सारी बातें मेरे इल्म में कि तो नहीं है ना। देखिए जिस चीज अब मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली वही
और उनकी वालदा पर नाज़िल हुई में फर्क है या नहीं है, ये मेरा सवाल बिल्कुल है। फर्क है, 100% फर्क है। 100% फर्क है ना। शैतान भी, यही आपको पता है शैतान भी वही करता है, तो मुझे शैतान क्या पता है, नबी हो बिल्कुल गया? मुझे पता है, बिल्कुल पता है। यही मैंने पूछा है ना कि ये जो वही नबूवत होती है ये मखसूस होती है। बिल्कुल अब हम कहते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम की वही है, उसको हम वही वलायत लेते हैं, वही नबूवत सही। लेते ही नहीं है। ये सही। फर्क करते हैं हम। आप पता नहीं किस पैमाने पर करते हैं, हम इस पैमाने पर फर्क करते हैं कि वो वही वलायत थी वो गैर नबी को होती है, सही है। और नबी पर जो वही होती है वो वही नबूवत कहलाती है। ये फर्क है दोनों में। ठीक है, आपकी तवील है। वही है नबूवत शरीयत वाली वही को कहा जाता है, जो नई शरीयत जदीद लो जी, शरीयत लो जी, हाँ लो ये जी। उनकी तावील है ना नईम साहब, फिर उनकी तावील भी तो लेना। अगर वो ये आप अच्छा, इसकी बात मैं से पता चलता बखिया है, देता हूँ। इसलिए ये टॉपिक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये टॉपिक नहीं है। इसके लिए इक़्तिबासात जो हैं उनके सामने आएंगे तो बात वही होगी। नबूवत। अच्छा, आपके मुताबिक जो है जो ये इनकार जो है वही नबूवत के इनकार से बंदा काफिर होता है या दूसरी वही से, वही वलायत से? जा नबी की बात हो रही है जो नबूवत का दावा वही करता है। वही नबूवत होती है। फिर मिर्जा साहब शरीयत नबी है ना, वही तो नबूवत जिसको वही नबूवत कहते हैं, वो तो साहब शरीयत नबी को होती है आपके मुताबिक। और जो बंदा कहता है कि मैं नबी हूँ लाजमी उसकी वही नबूवत है। की तारीफ दिखाएं हमें कुरान करीम से, भाई ये इनका ये तारीफ आपके सामने आई है ना, कुरान इन्होंने करीम खुद से तारीफ की। दिखाएं ना। वो भी दिखा लेंगे, हाँ तारीफ जी, दिखा दिखाएं लेंगे। अभी शाबाश। ये जो अभी बात हुई है ट्रूथ सीकर से, आप दिखा दें, ट्रूथ सीकर मेरे लिए हुज्जत नहीं है। मेरी बात उससे और ये जरा होल्ड रखें, फिर जरा होल्ड रखें, हाँ दिखाएं, शाबाश, होल्ड रखें, जल्दी जरा करें। होल्ड रखें, मुझे ट्रूथ सीकर से मुकम्मल करने दे बात। और वही नबूवत की तारीफ दिखा दे हमें। तो दिखा दूंगा ना। हाँ, दिखाएं क्या- ना, कब नहीं, दिखा देंगे? ये कौन सा कीड़ा तुझे तंग कर रहा है जो उतना जल्दी हो गया? मेरी जो गुफ्तगू कीड़ा हो रही है ना। मोहम्मद हसन बटालवी को तंग करता था, जो सनाउल्लाह अमृतसरी को तंग करता था, जो अहमद रजा खान बरेलवी को तंग करता था, जो तुझे तंग करता है, अब उस कीड़े का नाम भी बताऊं मैं? तमीज से पूछा, वो वही है नबूवत की तारीफ बताएं, कहाँ पर लिखी हुई है? उस कीड़े का नाम किरमे खाकी था। हाँ जी, हजरत दाऊद को भी वही कीड़ा था। ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟੀ ਜਾਓ। ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। सारे गवाह रहे हैं कि बात हो रही थी आपस की। चले, अगर नईम भाई ने उसको कह दिया है कि तुम्हें कौन सा कीड़ा तंग कर रहा है, उसने दूसरे के काबर का नाम लिया। नहीं है, इन्होंने हजरत दाऊद नबी की बात की है। जी जी, वाकई तो- कालू साहब आपने ये हजरत दाऊद नबी की बात की है। जब काबर की तरफ जाएं वही काबर आपका जिक्र करे, फिर आप नबियों पे जाएंगे। नहीं ये तो बड़ी ये है देखिए, मसला। क्या बड़ी बड़ी गलत बात है ये। बनी क्या साहिब गलत साहब, बात आपको है? इस बात का पता नहीं है ना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बात ने का भी पता है, यही- नहीं है, ऐसी बड़ी यही अशार- गलत यही बात है। अशार कहे हुए हैं, इससे मिलते जुलते अशार बातें तो कहे हुए हैं। मुझे बहुत पता है बातें। हाँ, आपको बताएं भी हैं तो पता है। बेज़रा आपको खामोशी से मैं सुने। आपको समझाता हूँ ना। आपको बंदा भी पता है पता कि वो है कीड़ा कि जिस वक्त मिर्जा कादयानी एक से मिनट निकला था रुकें, तो 16 दिन उसे नहीं पिछवाड़े साहब, थे एक कौन? मिनट रुकें, एक मिनट रुकें। हाँ नहीं मान को हाँ नीचे देखा ना, अच्छा, बकवास शुरू होगी। अच्छा नहीं बनी साहिब आप साहब- देखें ना, बनी गलत साहिब बात साहब एक मिनट आपने सुन की लें। है। हज़रत यकूब को कीड़े पड़ गए थे। कीड़े किसको पड़े हुए थे? हज़रत यकूब को। तुम्हारी तफसीरों में लिखा हुआ है, दिखाऊं? बात ये है बनी साहिब साहब कि ये इनकी जो गंदा जहन है ना, हम इनको कहते हैं कि ये आपका जो गंदा जहन है, ये यार बात मैं- कर रहे हैं, ये कहाँ तक जा रही रुके है? ना ये हमारी मुशिक बात नहीं है, भाई, इन लोगों का कहानी जहन है बोले इसमें। जी, आप क्या बता रहे हैं, किसको कीड़े पड़ गए थे? जी हज़रत यकूब को पड़ गया। और हजरत अय्यूब दाऊद को, के बारे में अय्यूब क्या बोला है आपने? हज़रत दाऊद ने भी वही शेर बोले हुए हैं जिस तरह का हज़रत मिर्जा साहब ने बोले हुए। मैं मिर्जा साहब की बात नहीं कर रहा, हजरत दाऊद के बारे में आपने क्या बोला था? जी हज़रत दाऊद ने भी यही बोला हुआ है कि मैं किरमे खाकी। किरमे खाकी। और किरमे खाकी को आपने क्या बोला कि वो एक कीड़ा है? ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं ना भाई, नहीं आपने उसको हजरत दाऊद पे मंसूब किया ना। हमने नहीं मंसूब किया, हमने हमने कहा नहीं किया। है कि तुम्हारी बात कहाँ तक जा रही है, ये हम उनको समझा रहे हैं कि तुम्हारा जो नहीं गंदा बात जहन है ना, बात आपस में हो रही है, आपस की बात आपस को में नहीं ना हो एक रही। नबी पे- आपस में कहाँ पर हो रही है बात? आपस में हो रही है। जब तक मिर्जा साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो नबी नहीं है। नहीं उन्होंने मिर्जा साहब के बारे में ऐसी कोई कहा बात है उन्होंने। क्या कहा है? आपके कान बंद थे ना, क्या आपको कहा है? बताएं नजर क्या नहीं कहा आता। छड़ दे यार वकास। जो उन्होंने कहा है वही मैंने उनको कह दिया है।
जो उन्होंने कहा है ना बनी साहिल साहब, थोड़े से मुझे बात को रिकॉर्डिंग समझा चाहिए थी, करें। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। तल्ला साहब अब दोबारा क्लेम नहीं करेंगे इस बात का कि हमने ये बात क्यों की और वो बात क्यों की है। जो मेरा हमने असल में की है आप लोगों हमने से उस वजह से की है, उन्होंने जिस वजह से आपसे की मेरा थी कोई उसको लेना हमको देना जवाब नहीं है दे दें। कालू साहब, ना आपसे मेरा कोई मसला चलो है ना ना किसी लेना फिक्र देना से। हो फिर खामोश हो जाए। मैं आपके जब पास नहीं आपका बैठा तो हुआ, लेना देना नहीं है तो फिर आपके मेरे से पास नहीं मुखातब बैठा ना हो। तो मेरे बैठे हुए आप किसी नबी रसूल के बारे में ऐसी ऐसी तो जुबान ना आपके इस्तेमाल बैठे करें। हुए क्या नबी बात रसूल है की बनी बातें साहिल कर साहब, रहे क्या थे। बात की है? आप बताएं क्या बात की है? ये कह रहे हैं हजरत याकूब को कीड़े पड़ गए। वो हजरत दाऊद की पहले बात हो रही थी। चले हजरत दाऊद की हजरत बात यकूब अलैहिस्सलाम के बारे में इनकी तफसीर में लिखा हुआ है, ये बताया जा रहा है उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये ना डॉक्टर डेरिंग ने जो कहा है ना, मैं किरमे खाकी जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक शेर है, तो उस हिसाब से फिर आगे ये कालू ने कहा है, तो यानी आगाज इसने किया है। तो इस बात को आप दोनों तरफ से खत्म ही समझे। एक अगर करता है दूसरा सब्र कर जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। नहीं वो तो मानते नहीं है ना। मैं एक मिनट रुके यार टोशिकर भाई, एक मिनट आपको रुके। समझाता हूँ, एक मिनट सुन लें। मरियम आती वो मिर्जा साहब को नहीं मानते, क्या कालू साहब जो है हजरत दाऊद को नहीं मानते, हजरत याकूब को नहीं मानते? वो उनको इल्जामी तौर पे बता रहे हैं कि अगर आप एक इल्जामी नबी को तौर पे करेंगे, जिसको आप नबी रसूल मानते हैं उसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं इल्जामी तौर पे? क्या बात की है? एक मिनट में आप ही मरियम मैं पूछता हूँ जी, बनी इसराइल भाई कौन सी गलत बात की है मैंने, बताएं। यार आप ये जो बातें कानून आप कर थोड़ा रहे से हैं, हाँ, क्या सब्र गलत से- बात की है? सब्र ये से जो बात बातें आप करते हैं। कर रहे हैं हजरत दाऊद के बारे में और हजरत याकूब के बारे में, ये अच्छी हाँ ना। बातें हैं, ठीक दुरुस्त बातें तो हैं। ये लिखा हुआ है उनके बारे में, लिखा हुआ मैं मैं अपनी आपको तरफ से दिखाऊं कर रहा हूँ। फिर? लिखा हुआ क्या दिखाऊं? दिखाना है, क्या दिखाना है आपने आप मुझे? आमिर नजीर साहब आप भी उतरे नीचे, डॉक्टर डेरिंग भाई आप भी नीचे उतरे, मैं इनको दिखाता हूँ, दिखाएं जी, आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ दिखाएं, फिर मुझसे भी देख लेना। आमिर लिखा साहब हुआ आपसे दिखाऊं, मैं रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, दिखाऊं। डॉक्टर डेरिंग साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, हाँ, नीचे ठीक है, उतरिए जाए। प्लीज, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ जी, दिखाएं दिखाएं। हाँ मैं तुम्हें थोड़ा दिखाता हूँ सा हमारे, सब्र तहम्मुल से बात करें एक नहीं दूसरे से। दिखाने मैं दे नहीं नहीं मैं इसको दिखाता हूँ आपके। हाँ, नहीं नहीं बहनोई का नाम नहीं ले रहा, नहीं नहीं इसको दिखाता हूँ, आपको कहे बहनोई का नाम नहीं ले रहा ना। दिखाता हूँ कालू तुम्हारे बड़ों को। इस तरह नहीं बात करते। यार अच्छे तरीके से मुखातब करो ना। ना करो मैं यार। करता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, मैं हवाला हाँ अच्छे से ना मेरा चल बेटा, अच्छे यार। से मुखातब करो। एक मिनट बनी साहिल साहब, एक मिनट बात सुने जरा। आप मुझे ये बताएं कि उसने क्या गलत बात की है, पहले ये बताएं। नहीं नहीं कुछ भी नहीं गलत बात की, मैं इबारत तो पेश बोले करता तो हूँ। सही ना, क्या गलत बात की है? नहीं नहीं बिल्कुल इन्होंने इबारत एक पेश की है ना, मैं भी इबारतें रख देता हूँ बस। हाँ तो सीधी सुन सी लो ना बात है। बनी साहिल, तुम इंसान मैं इबारतें रखूंगा, सिर्फ इबारतें रखूंगा, अपनी कोई बात नहीं करूंगा। बनी साहिल साहब बात तो सुन लो पहले, ऐसी लड़ने पे आ गए हो। जब एक बंदे ने ज़िया ने कहा कि किरमे खाकी हूं, ठीक है, हमने तो कोई उसका गलत मतलब नहीं लिया, वो ज़िया गलत मतलब दे रहा था, तो हमने कहा यही शेर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी कहे हैं। सही बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो अब मानते इसमें- नहीं है ना, वो तो मानते नहीं है। वो लोग मानते नहीं है, कहाँ उन्होंने कहा कि हम हजरत दाऊद को नहीं मानते? उनके अपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इशार किया है, ये वो मानते हैं। देखिए उन्होंने बात उनके लिए की है मुखालफत में जिनको वो नहीं हाँ ना, तो हजरत दाऊद ने भी वही बात की हुई है, क्या करें अब? आपने हजरत दाऊद के बारे में बात की है। हाँ तो हजरत दाऊद ने जो बात की है मैं बतानी नहीं है उनको? हाँ मैं बताता हूँ फिर। हाँ बताएं बताएं। आपके नबी के बारे में मैं बताता हूँ। चलो बताएं। हाँ, एक मिनट, ये जो तुम बताने लगे हो, ये किसके किधर से बताने लगे हो? हाँ ये बताने दो। हाँ हाँ आपकी किताबों से बता। हाँ बताओ बताओ, हमारी किताबों से बताओ बताओ। जो लोग ईमान लाए हैं उनकी किताबों से। बिल्कुल। पहले अपना बताओ, तुम हो कौन? अपना बताओ कौन हो तुम? अभी पता चल जाता है मैं कौन। ओ बताओ ना, पहले बताओ कौन बताता हो। हूँ, सब्र तो चलो करो बताओ यार। शाबाश, अपना बताओ, क्या है तुम्हारा फिरका, कौन हो तुम? बताता हूँ हाँ बताओ ना, बताते कब हो बताओ। फिर कभी तुम्हें ओ, बताओ। बताता हूँ। कोई टेप रिकॉर्डर चलाया हुआ तुमने? बताओ। तमीज से बात करो यार, हम तुम लोग के पास आके बैठे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम लोग इस तरह से तो शुरू यही बात उसको समझाए ना। भाई तमीज से बात करे कालू। सबको प्यार है हमारे साथ।
ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਕੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀਦਾ ਦੱਸ। ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਦਾ ਦੱਸ ਕੁਰਾਨ ਚ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਸਬਰ कर। वकास मैंने उतार दिया ताकि लड़ाई झगड़ा ना यार नहीं, इस छोड़ वकास दो को भी यार, मारे ना। छोड़ दे बात को। इस वकास को भी बदतमीजी करने लग गए यार। देखें ये चले मैं सबको उतार के ब्रॉड बंद कर देते हैं। छोड़ दो। ये बंदा मैं सबको उसको बार अल्लाह बार समझा रहा हूँ हाफिज। बनी इसराइल को, मैं बार बार समझा चलो रहा भाई हूँ छोड़ कि इससे दो बात तुसी भी गलत यार। की क्या है। ਛੱਡ ਦਿਓ छोड़ दो। कसम बात छੱਡ ਦਿਓ। नहीं यार, ये क्या अहमदी भाइयों ने जबरदस्ती छोड़ दे यार, मिर्जा साहब छोड़ को दे। माना हुआ है, ना कोई दलील ना कोई। बुखार नहीं उतर गया यार, पता नहीं की तुम्हारी। तला साहब मौजूद हैं आप इधर? ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। तला साहब ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲ ਮਾਰੀ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਓਵੇ तला साहब आवाज आ रही है? बनी इसराइल साहब आप मुझे तो समझा दें कि आप नहीं मैं क्या समझाऊंगा अभी, मैं आपको कुछ नहीं समझाना, आप मैंने मुझे कुछ तो नहीं समझा समझाना, देना। मैंने आपको कुछ नहीं समझाना। मेरी बात सिर्फ तलत साहब से है। मैं मुझे आपकी जमात से ना कोई लेना देना है, ना आपके मिर्जा साहब से कोई लेना देना है। मैं सिर्फ चुप होता हूँ तो सिर्फ तलत साहब की वजह से और नासिर अहमद मुझे साहब बता की तो वजह से, देना, गौस साहब मुझे की भी वजह से। बता दें, मुझे भी बता दें कि क्या है इसमें। हाँ इबारत है ना, इबारत मैं इबारत अब पेश करूंगा। आपने नहीं, इबारत सिर्फ सुनने का, आपने सिर्फ इबारत को सुनने का हौसला रखना है बस, कि ये नहीं, इबारत अब पढ़ी जाएंगी। नहीं बनी इसराइल और साहब, तलत साहब को ब्रॉड के ऊपर बिठा के मैं इबारत बात बढ़ा पढ़ूंगा। रहे हो यार। एक बात खत्म हो रही है, उसको खत्म होने दो ना। क्यों जल्दी पे आग डाल रहे हो? नहीं मैं जल्दी एक पे नहीं डाल रहा, दिया ब्रॉड ठंडी हो गई, खत्म हो गई बात ना। हम तला साहब से बात करेंगे, बात खत्म। ये मिसाकी भाई अच्छी बात कर रहे हैं, बात को खत्म करें पिछली बात को। हाँ नहीं मेरी और हम सिर्फ प्यार से देखें, आपकी बात खाते सुने। हैं, पीते हैं। आपको नहीं आइडिया है इस बात का? हमारे ब्रॉड पे या हमारे में से जितने भी भाई ऐसे, अब जब भी कभी कोई ऐसी इबारत या कोई ऐसी बात लगाते हैं तो चूंकि हमें भी पता है कि हमारे भी अहमदी भाई हैं, तो उनका दिल दुखता है इस तरह की जो इबारत या इस तरह की जो बातें हैं उनके बारे में ठट्टा मजाक होता है, तो हम उनको अवॉइड करते हैं। हम उनको कहते हैं हाँ कि जी भाई बिल्कुल ऐसा ही करना आप चाहिए, कोई एक दूसरे इनमें का बात करें। एहतराम करें। और ये जो है ना बात अभी सिर्फ सुबह हो रही थी जुबान के डिस्कस, चस्के नहीं होने चाहिए। तो इनको क्या लगता है कि जो अल्लाह के सच्चे नबी रसूल जिनको हम मानते हैं और कुरान उस बात की दलील देता है, हमें तो तवील करने की भी जरूरत नहीं है कि हजरत दाऊद के बारे में, हजरत याकूब के बारे में किसी को डाउट हो। हाँ तो किसी को डाउट नहीं है। मैं बनी इसराइल साहब, आप मैं मुझसे कह बात रहा हूँ करें। जो भी आप अब इबारत की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी, मैं आपको सुन लेना बनी इसराइल साहब, आप बात को समझ क्या नहीं रहे। मकसद क्या था इबारत पेश करने का? मैं बताता हूँ। हम तो उसका सही मतलब समझते हैं ना। हम तो उसका सही समझ, किरमे खाकी हूँ मैं, ये हम हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का शेर है। उस शेर से जो ये मतलब ये लोग समझते हैं, हम तो वो नहीं समझते, हम तो उसको सही समझते हैं। और इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी ये अशार कहे हैं, तो हम भी उसका सही मतलब समझते हैं। हम सिर्फ इनको आईना दिखा रहे हैं कि अगर आप गलत मतलब देखते हैं, सुनते हैं, तो इस तरह के शायद उन्होंने भी कहे हैं। ये बात थी सारी। हमने तो ये नहीं कहा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसमें आजिज़ी इंकिसारी है। अच्छा इनको ट्रुथ सीकर भाई, इनको आईना दिखाने से आप अंबिया पर तौहीन करेंगे? नहीं लेकिन तौहीन की वो तो मानते ही नहीं है ना। आसिफ भाई आप बात को खत्म होने दें।
नहीं, मैं बताता हूँ, हमने तौहीन नहीं की, हमने तो अच्छा मतलब ही समझते हैं हम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी जो बात की है हम उसका सही ये मतलब हजरत समझते हैं। याकूब को कीड़े पड़ गए, ये अच्छी बात है? ये इस इबारत को बताने का क्या मकसद है? मैं उसका मैं बताता हूँ। सबसे नहीं, पहले ये है कुरान के लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि इनकी किताब में लिखा है, नहीं है। ये लोग भी, ये जो ज़िया रसूल और आम नज़ीर जो हैं, ये भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं। इन्हीं के काबरीन ने अपनी किताब में यार ये बात इनको लिखी है। मुझे क्यों दलील दे रहे हैं इनकी? नहीं, आपको तो नहीं दे रहा मैं। तो यार हम तो बैठे हुए हैं ना, जब नहीं, मैं आपको नहीं दे आपके रहा। बैठने हमने तो पे उनको कहा हम लोग था, लिहाज बनी साहिब करते साहब, हैं, तो हमारे सुन बैठने लेना। पे आप पर भी लाजिम है ना लिहाज करना। नहीं, बनी साहिब साहब सुन लें बात। हमने तो उनको कहा है, आमिर नज़ीर साहब को और डॉक्टर डेरिंग को, कि आपकी किताब में आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं और आपके अकाबरीन ने ऐसा लिखा हुआ है, ये कहा है। देखिए तो ये उनकी तो बात जुर्रत है, वो ना माने, कुरान में मौजूद है, उनकी जुर्रत है, वो इनकार कर दें, कर ही नहीं सकते। लेकिन हम उनको दिखा रहे हैं ना कि आप इनकार करते हैं। ये जो आमिर नज़ीर और ज़िया रसूल हैं, इनके काबरीन इस तरह की बातें लिखते हैं, भाई तो आपने ये क्या इनकार कहा, कर रहे क्या हैं। नहीं कहा, असल चीज ये नहीं है। बात ये है कि नईम भाई ने अगर आपसे कोई ऐसा लफ्ज बोला है जो आपको पसंद नहीं है, आप उनके काबरीन तक जाएंगे, नहीं, आपके बिल्कुल काबरीन नहीं तक जाएंगे, आप फिर नहीं, सारे नहीं। नबियों की तरफ जाएंगे। ये है असूल नहीं, आपका। ऐसे इतनी सी नहीं बात है। मैं इसको बताता हूँ, ऐसे नहीं है। बहुत अच्छी हमने बात तो है। कहा है, मेरी बात सुनो, हमने नईम भाई तो ने आपको अगर फर्ज कर लो गाली दे दी है, अब आप मुझे उसको बात दे तो दो। करने दें भाई, मुझे बात तो करने दें। आपने एक बात कही, हमने कहा, आपने सिर्फ ये कहा कि किरमे खाकी हूं मैं, और नहीं, ये इससे पहले बात करो, किरमे खाकी से पहले की बात करो। किरमे खाकी से बात स्टार्ट हुई है ना। नहीं ना स्टार्ट, इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग गलत बयानी करते हैं। क्या मतलब, कहाँ से स्टार्ट हुई है? कहाँ से स्टार्ट हुई है? अगर आप जानबूझकर अपने लोगों को धोखा देना चाहते हैं, जानबूझकर झूठ बोलना चाहते हैं, तो आपका हमारे पास क्या इलाज है? सबको पता है नहीं, कहाँ से बात शुरू हुई है। उन्होंने मैं भी इधर ही हूँ, मेरी बात सुनो ना, मेरे साथ भी वही दो कान लगे हुए जो आपके साथ लगे हुए हैं। हाँ, तो ज़िया रसूल ने क्यों कहा था किरमे आप खाकी का नाम क्यों लिया? हाँ, ज़िया रसूल ने क्यों लिया है किरमे खाकी का नाम? और सवाल ये है कि तुमने क्यों लिया मोहम्मद हुसैन बटालवी का और उलमा का नाम? वो उलमा थे, तो आप तो उनको मानते कुछ नहीं हो। मैं मानूं या ना मानूं, तुमने हाँ, तो उलमा जब की उनको बात मानते कुछ नहीं तो उलमा कहाँ से हो गए वो? नहीं भाई, जब तुम उनको मानते ही नहीं हो तो उलमा कहाँ से हो गए? तुम्हारे काबरीन कहाँ से हो गए? तुम तो उनको मानते ही नहीं हो। बात छोड़ के आगे गया क्यों है? हाँ ना, तो आप तो मानते ही नहीं उनको, तो आपके काबरीन कहाँ से हो गए वो? इनको नहीं मानते। मोहम्मद हुसैन बटालवी को ना, अहमद रजा खान बरेलवी को ना, सनाउल्लाह अमृतसरी को, किसी को मानते ही नहीं है तुम। क्या मानना है? उलमा को उलमा मानते लोग नहीं ना मानते तुम उलमा को। मतलब ये है तुम उलमा तक गए क्यों? बात क्योंकि तुम मानते ही नहीं हो उलमा को। वो मानते नहीं हो, तुम भी मिर्जा कादियानी को नहीं मानते। हम तो मानते हैं, हम तो क्या जाने मानते दे रहे हैं तुम? उनके लिए। क्या मानते हो उसको? हम उनको वही मानते हैं जो उन्होंने कहा। नहीं मानते तुम। लो तो नहीं, क्या मतलब है? फिर मसला तुम्हारा क्या फैसला है? मैं करूंगा ना, मेरा फैसला तुम करोगे कि मैं उलमा को नहीं मानता? हाँ, तो नहीं मानते। तुम्हारा फैसला मैं करूंगा, तुम मिर्जा कादियानी को नहीं मानते। मेरा फैसला तुम पहले अपने उलमा को तो इसका मान लो। मतलब क्या है? सवाल ये है कि तुम उलमा तक गए क्यों? तो मैं उलमा तक जाऊंगा क्योंकि वो मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम को गालियां देते थे, उनकी गालियों का जवाब उनको मिलता। ये है इनका असूल कि अगर आप इनके खिलाफ कोई बात कहेंगे, ये आपके उलमा को कहेंगे, जवाबन आप मिर्जा कादियानी को कहेंगे, ये नबियों को कहेंगे। ये है तो मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम नबी थे ना, नबी का मुआवजा तो नबी से होगा ना। दज्जाल हाँ, तो कहते रहो नबियों, तमाम नबियों को दज्जाल कहा गया है। कज़्ज़ाब और दज्जाल था। हाँ, तो ये सब नबियों को कहा गया है, नबियों को नहीं, ये कज़्ज़ाब ये और सब दज्जाल नबियों को कहा गया है। कुरान में लिखा हुआ है कि तमाम नबियों को उनके मुनकरीन जो थे वो दज्जाल और कज़्ज़ाब भी कहते थे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है वो किताबें लिखी हुई हैं। ओ भाई, कुरान पे जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लानती कज़्ज़ाब और दज्जाल था। तमाम नबियों के बारे में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? अच्छा, कुरान माइक में लाना, दलील माइक लाना। कौन सी आयत चाहिए तुम्हें? कौन सी आयत चाहिए तुम्हें बनी इस्राइल साहब? दोनों में ये सिस्टर अच्छा, क्या नबियों को उनके जो मुनकरीन है वो कज़्ज़ाब नहीं कहते रहे? दिखा दे। कुरान कुरान का ही आयत कहता हो, कुरान में नहीं लिखा हुआ कि तमाम अंबिया को कज़्ज़ाब कहते रहे हैं। कहाँ कहा गया है कुरान में? अच्छा, तो दज्जाल किसको कहते हैं? आयत देना तू है बदतमीज यार, हया ही नहीं है इनू।
मैं कहता हूँ अगर 100% भी आपको टिकटॉक रिफंड करता, यानी कि जितने आप कर रहे हो उतने, तो इसके बावजूद जो असल जो मसारिफ हैं वहाँ तो पैसा नहीं खर्च हो रहा ना, जहाँ पे होना चाहिए। देखें बैश भाई, अगर कोई बंदा मुश्किल में हो, कोई हमारा जमात का अगर कोई फर्द मिसाल के तौर पे मुश्किल में, हम उसको उसकी हेल्प ना करें, सर वो मुस्तकबिल का मुर्तद है। वो हम ये क्यों नहीं समझते ये चीज़ें? वो बंदा कल अगर बाहर निकल भी गया ना, कहीं बाहर आ गया, वो अमेरिका कनाडा आ गया, उसने कहना यार जब मैं कल मुश्किल में था मुझे किसने पूछा। आज आप कहते हो जमात करते हो, आप जमात करते हो, मैं क्यों जमात में रहूं? कल मैं मुश्किल में था, मेरे बच्चे भूखे थे, मेरे पास मकान का किराया नहीं था, मैं तो लोगों से मांग कर थक गया, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। आज मैं यहाँ पर निकल गया तो अब मुझसे आप चंदे मांगने आते हो। वो मुस्तकबिल का मुर्तद है, और मुर्तद हम खुद बनाएंगे, फिर उस सूरत में उसको मुर्तद बनाने वाले हम खुद हैं। ये दूर अगर आप जाके सोचें ना, इन चीज़ों को डेप्थ में जाके सोचें, तो ये इससे मुआशरा तबाह होता है। कोई ऐसी औरत है मिसाल के तौर पे, उसकी बेटी बैठी हुई है, उसके पास खर्चे नहीं है, यानी कि शादी का खर्चा नहीं, ठीक है, हमें पता है कि उसके पास खर्चा नहीं है, इसके बावजूद बजाय इसके कि हम उसकी हेल्प करें, हम कहीं और पैसा लगाएं, तो जाहिर सी बात है उसने या दो काम करने, या तो उसने गैर अहमदी लड़की देनी है अपनी, ठीक है, या फिर उसने बगावत के ऊपर उतर के जमात के खिलाफ बोलना है कभी ना कभी, कि मैं तो सड़ती रही, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं था, मेरी किसने हेल्प की, ना जमात आई ना कुछ है। इसलिए पहला जो आपके जो माशरा होता है ना, उसको टेक केयर करना होता है, लोगों पर खर्च करने होते हैं। ये गिफ्टिंग शिफ्टिंग ये वो सब, कोई गरीब आता है कभी कभार, वंस इन अ वाइल आप किसी को 100, 150, 200 कोइंस मार दो, चलो वो एक कभी कभार हो गया। लेकिन ये जो रीत है ना, ये जो हमने रीत बना ली है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने इसका बड़ा डीप जाके एनालिसिस किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी पॉकेट से ना पैसे निकलवाने का एक जरिया है।